guest today is an internationally acclaimed speaker. He is India's top NLP expert. He's an award-winning marketing influencer. He's an Amazon #1 best-selling author. With a passion for connecting science and spirituality, he empowers millions through his work with NLP, personality development, and inspiring videos and content that he's been creating. He's the founder of 3 multi-million companies and has left a profound impact on industries ranging from Bollywood to cricket, and has also been awarded several prestigious awards, including an honorary doctorate, which is really awesome. And if I start listing out all of his other accomplishments, I think we'll be here much longer today. So I hope all of you are ready to unlock the secrets of the limitless mind with Sir here today. So thank you so much, Sir, again for joining us on the Thank you, Classroom to guys. Career series at IIMN with Rishihood University. We're very happy to have you. Thank you. Glad to be part of this. Thank you. Sir, so to get us started, I just wanted to ask you where it all started for you. What is it about, wanting to help people through working on mental health and wellness, and more of what led you into this field? Where did it all start? Yeah. So first of all, I always had a passion for teaching. From my 8th class, I was teaching. But earlier, I was teaching physics, mathematics, chemistry. But with time, I developed this passion that I just love teaching and I wanted to share with people. But at the same time, I had public speaking phobia. बहुत सारे बच्चों को होता है, लोगों के सामने मुझे अगर स्टेज पे जाने का अगर कोई बोल दे उस टाइम पे, तो हार्ट में ऐसे ड्रम बजने लगते थे, जैसे कोई ड्रम बजा रहा है हार्ट में, ऐसी फीलिंग रहती थी। कान लाल पड़ जाते थे और ऐसा माइंड बिल्कुल ब्लैंक होने लगता था और बॉडी शिविर करती थी। तो बहुत ही एक फोबिक रिस्पॉन्स मेरा रहता था, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के। बट एट द सेम टाइम मेरा पैशन था कि मैं लोगों को शेयर करूं। तो ग्रुप सेटिंग में तो चलता था कि 5 लोग 7 लोग बैठे हैं तो आई कैन टीच, बट जब बात स्टेज पे जाने की हो तो फोबिया रहता था। तो ये चीज जो मेरी एक बहुत ही डीप लिमिटेशन थी, ये मैंने देखा कि बाय प्रैक्टिसिंग, बाय यूजिंग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, आई स्टार्टेड overcoming this public speaking phobia. Second, I think 6-7 years back, I had anxiety neurosis as well. It was general anxiety, so I healed myself from that as well. And plus, all around I was seeing कि even young बच्चों में भी आप देखते हैं तो आज स्ट्रेस उस समय पे बहुत था। प्लस कई लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। साल के 10 मतलब कि रोज के 10 सुसाइड आप देखें तो बच्चे कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये बहुत सारा स्ट्रेस और मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा है, और जब मैंने खुद ने ओवरकम किया है तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग जस्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स, व्हाई नॉट टू टीच मेंटल वेलनेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और बहुत यंग एज से ही इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो एक हेल्दी माइंड हम डेवलप कर सकते हैं। तो हेल्दी माइंड होगा तो यानी हेल्दी विचार होंगे, हेल्दी थॉट्स होंगे, आप इमोशंस को अच्छे से हैंडल करेंगे, यानी कि यू विल रेडिएट पॉजिटिविटी ऑल अराउंड यू। तो Correct. जो आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो आप वही रेडिएट करेंगे अपने आसपास की दुनिया में भी। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड, फ्रॉम पर्सनल जर्नी, फ्रॉम first fighting the personal battle and then helping people around me. So this is how it started. Right, sir. So one thing that's, I think it's a wonderful place where you took your passion for teaching and actually started teaching something that a lot of people don't teach people at a young age. Matlab, maths and science are important, but I think also teaching young people how to stay mentally healthy. We have a PT period, but also having something for mental wellness is very important. Which actually brings me to my next question. Sir, so when in IIMN we do these conferences in 220 cities and we also do them in 35 countries. So when we do these, we have a lot of students discuss issues like mental health and the reasons for it, be it social media or in education or anything like this. But a lot of times the root cause of that a lot of students share with us is that there's too much competition in the world. There are too many people you need to compete with to chase the same dream or to change the same goal. So my question to you here is, sir, is that can, in the pursuit of your dreams, when you have to be in that rigor, go at it every single day, when you have to chase that dream, can you also simultaneously take care of your mental health, or can they exist together, or does one need to take a break for the other? नहीं, दोनों साथ में बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है। और बट उसके लिए एक सर्टेन डायनामिक्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी होगा।
आज अगर हम देखें तो बहुत हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है, जो कि बहुत फास्ट पेस्ड है। और मतलब सफलता आपसे ना आपके शरीर का एक एक कण मांग लेती है। each and every cell it will suck out of you if you really want to succeed in today's fast paced world. बट अगर आप राइट तरीकों से और राइट गोल्स के प्रति मेहनत कर रहे हैं तो आप अपनी मेंटल वेलनेस को और अपने गोल्स को, एस्पिरेशंस को, दोनों पे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा और डिटेल में इसमें जाऊं तो फॉर एग्जांपल, आप काम हमेशा ऐसा चूज कीजिए जो उससे आप रियली पैशनेट है। कई बार क्या होता है कि हम अपने अपने जो गोल्स हैं वो आसपास के लोगों से प्रभावित होकर के उन्हें पिक कर लेते हैं। वी पिक देम फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो अब होगा क्या कि जब आप देखा देखी में कोई गोल्स पिक किए हो तो वो आपके दिल के करीब नहीं है, आपकी इनर वैल्यू से अलाइन नहीं, यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, इट जस्ट दैट कि मे बी आप सरवाइव करना चाहते हो या अच्छी नौकरी चाहते हो या फिर अपना घर चलाना चाहते हो, इस वजह से आपने उसे चूज कर लिया है। तो इसमें जब आप मेहनत करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, बर्नआउट आएगा, एग्जॉशन आएगा। लेकिन जब आप कोई काम ऐसा कर रहे होते हो जो आप पैशनेट हो, तो फिर काम काम नहीं रहता, खेल बन जाता है। तो अब एक क्रिकेटर कितना भी घंटा प्रैक्टिस कर ले, कितना भी घंटा टेस्ट मैच में बैटिंग कर ले या बॉलिंग कर ले, वो बर्नआउट महसूस नहीं करता। भले ही उसका शरीर थक जाएगा लेकिन उसका मन थका हुआ नजर नहीं आएगा कभी भी। सो पहला एस्पेक्ट, अगर दोनों एरियाज में हमें बैलेंस बना के चलना है तो नंबर वन, आप क्या करियर चूज कर रहे हो उसमें बहुत डीपली उसके साथ एसोसिएट करो, अपना पैशन फाइंड आउट करो, और जिस चीज को लेके आप स्ट्रांगली पैशनेट हो उस एरिया में अपने काम को चुनो। क्योंकि उसमें जब आप मेहनत करोगे तो मेहनत मेहनत नहीं रहेगी, खेल बन जाएगा। आज अगर मेरा स्केड्यूल देखूं तो मेरा स्केड्यूल एक दिन का 8 से 10 घंटे की स्पीचेस रहती हैं। अभी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके आया, अभी आपके साथ में हूँ, इसके बाद में 7:30 से लेकर के 11 o'clock 11:30 तक फिर बैक टू बैक मीटिंग चलेगी। लेकिन फिर भी कोई बर्नआउट जैसा कुछ भी एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, बिकॉज मैं एक ऐसे काम में हूँ जो मैं जितना ज्यादा करता हूँ मुझे उतना ज्यादा और एनर्जी मिलती है। भले ही शरीर थक जाएगा मगर मेंटल इमोशनल थकान आपको नहीं मिलेगी। सो नंबर वन, यू शुड बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। सेकेंड चीज कि इनर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो भी गोल्स ले रहे हैं वो आपकी वैल्यू के साथ में अलाइनमेंट में रहने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट अलाइनमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अचीवमेंट। जब हम हसल की बात करते हैं तो हसल मतलब यूर रनिंग आफ्टर अचीवमेंट्स। लेकिन अलाइनमेंट का मतलब क्या है? अलाइनमेंट का मतलब यह है कि आपकी जो डीपर कोर वैल्यूज हैं, आपका जो मूल व्यक्तित्व है, जैसे कि सपोज फ्रीडम आपकी वैल्यू में है, ग्रोथ आपकी वैल्यू में है, क्रिएटिविटी आपकी वैल्यू में है, इनोवेशन आपकी वैल्यू में है, तो आप अगर एक ऐसे काम में हैं जिस काम में आपको रोज फिक्स काम करना है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप अनफुलफिल्ड रहेंगे बिकॉज आप अलाइनमेंट में नहीं है। तो हो सकता है आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, आपका पैकेज बहुत अच्छा हो, पैसा अच्छा खासा मिल रहा हो, बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छी हैं, घर बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, लेकिन आपकी जो डीप डाउन कोर वैल्यू जो फ्रीडम की है, इनोवेशन की है, क्रिएटिविटी की है, वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो योर अचीवमेंट विल नॉट गोइंग टू मेक यू फुलफिल। तो fulfillment can only come through alignment, by aligning with your inner deep core values. Okay, so this is the second thing जो कि बहुत ज्यादा important है। तो जब आप एक alignment में काम करेंगे, आपकी deeper values और आपके जितना भी work life है वो जितना ज्यादा alignment में रहेगा, you will feel that this life is a play, this life is not a struggle, not a battle, बट ये एक प्ले है, गेम है जिसमें आपको खेलने में मजा आएगा। अब गेम में भी हार जीत होती है, गेम में भी मेडल्स होते हैं, गेम में भी अचीवमेंट्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आप एक अलाइनमेंट में रहें। सो फर्स्ट इज पैशन, सेकंड इज अलाइनमेंट, एंड थर्ड थिंग इज यू हैव टू मेक सेल्फ केयर योर प्रायोरिटी। सेल्फ केयर को हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा, राइट? तो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ अचीवमेंट के पीछे भागते हैं, तो हम कई बार बैठ करके प्रॉपरली अपने आप को रिचार्ज नहीं करते, रीस्टोर नहीं करते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समय लेकर के सेल्फ केयर का मतलब क्या है कि अपने शरीर और अपने मन दोनों का ख्याल रखना। तो शरीर के लिए ख्याल रखना है तो आप अच्छी डाइट लीजिए, प्रॉपर ब्रीदिंग कीजिए, यानी कि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलनी चाहिए, डाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर मिलनी चाहिए, नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा रहेगी। तो इन चीजों को अपने रूटीन में रखना बेहद ज्यादा जरूरी रहेगा। और सेकंड चीज, मन के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, साइलेंस की प्रैक्टिस कीजिए, कि
भागदौड़ से दूर कहीं 1 घंटा आधा घंटा बस बैठ जाइए कहीं पे, ठीक है, और बैठ करके थोड़ा डीपली इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। अपने आप से थोड़ी प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव टॉक करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू यू नो मेक सेल्फ केयर योर प्रायोरिटी, बॉडी लेवल पे भी और माइंड लेवल पे भी, दोनों पे ये प्रायोरिटी हमें रखने की जरूरत है। तो आई थिंक ये 3 चीजें राइट। अगर हम हिस्सा बना लेंगे अपने जीवन का, तो आप अचीव भी कर पाएंगे, बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। प्लस आप इस चीज का भी ख्याल रख पाएंगे कि आप मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिजिकली अपने अंदर वेलबींग और वेलनेस के पैटर्न लेकर के चल रहे हैं। एक और चीज मैं कहूंगा कि ये बैलेंस आने के लिए ना, कई बार हम अ, पाने में इतना फोकस कर लेते हैं, अचीव करने में इतना फोकस कर लेते हैं कि इस प्रोसेस में हम बन क्या रहे हैं ये भूल जाते हैं। सो हमेशा हर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में बैठ करके अपने आप से ये बहुत क्लियर करना जरूरी है कि आप क्या पा रहे हो। आपके जो गोल्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन गोल्स को पूरा करने के प्रोसेस में आप क्या बनते जा रहे हो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी वो ना भूलें व्हाट यू आर बिकमिंग इन द प्रोसेस। तो अगर आप सपोज एक बिलियनियर बन गए हो, लेकिन बिलियनियर बनते बनते आप ओवरवेट हो चुके हो, आप एंजाइटी के शिकार हो चुके हो, आपको मूड स्विंग्स आते हैं, इरिटेबल हो चुके हो, एरोगेंस आ चुकी है आपके अंदर, 3-4 प्रकार के आपके पास में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के इश्यू आ चुके हैं, तो ये कोई अच्छी कीमत नहीं चुकाई आपने उस अचीवमेंट को लेने के लिए। सो हमेशा एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस अपने अंदर रखनी बहुत जरूरी है कि मैं क्या पा रहा हूँ और मैं क्या बन रहा हूँ इस प्रोसेस में। जो बन रहे हैं उसका भी ख्याल रखें। तो ये 3-4 चीजें अगर रखेंगे तो ये दोनों को आप साथ में लेकर के चल सकते हैं। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। I think you said that very correctly, sir. And I think two things that I take away from that answer is one, जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, to be a little nicer to ourselves and not to be harsh saying ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, but जो जो हुआ उसका हिसाब रखें and to just reflect and not be nicer to ourselves basically. But sir, I think before I go to my next question, I actually had a small follow up आपके आपने जो दूसरा point बोला था. So, but for that clarity to come, sometimes it takes a lot of time. And a lot of students that interact with us tell us कि ऐसे ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन छूट रही है, पर ना स्टेशन का पता जानते हैं ना ट्रेन का नंबर पता है. But because there is such a the speed of the world, like you were saying, because it's going so fast, हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई ट्रेन छूट रही है या छूट चुकी है, एंड बट हमें ना स्टेशन मालूम है ना ट्रेन मालूम है ना कुछ भी. So in this process of figuring it out, that what is it that the achievement is, or what is it that the ambition is, how do we find ourselves in that process also? जी, तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, काफी लोगों को रहता है, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि अपना पैशन ढूंढे कैसे। ठीक है, सब लोग बात करते हैं अपना पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, राइट। अब इसके 2 तरीके हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में पता चल जाता है कि मैं ये करने के लिए बना हूं। आप सचिन तेंदुलकर को देखें, 3-4 साल की उम्र में पता लग गया कि मुझे यही करना है। लता मंगेशकर, सोनू निगम, विराट कोहली, ये लोग हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में पता चल गया। लेकिन सबके साथ में ऐसा नहीं होता कि उन्हें कम उम्र में पता चल जाए। बहुत से लोगों के लिए सिंपल सा तरीका है, कीप ट्राइंग। कई बार आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों पे एक्शन लेना पड़ेगा, और जब आप 4-5-7 चीजें ट्राई करोगे ना, तो उसमें से एक ऐसी होगी जिसमें आपका दिल लग जाएगा। जिसमें आपका दिल लग जाए, यानी कि आपको वो काम करने में भी मजा आ रहा है और लोगों को भी उससे बेनिफिट हो रहा है। यानी कि जिनको आप सर्व कर रहे हो या जो प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एंड द पीपल आर ऑल्सो लविंग द सोल्यूशन। तो जब ये मैचिंग होगी ना, उस दिन आपको अपना पैशन मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए बस ट्राई करते रहें। एक शेर है, आई थिंक खलील जिब्रान का शेर है, बड़ा अच्छा शेर है, कि मिल जाएगी मंजिल एक दिन भटक कर ही सही, कि मिल जाएगी मंजिल एक दिन भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो निकल जाइए कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ट्राई कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर नहीं पता चल गया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर पता नहीं चला है तो 4-5-10 चीजें ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के प्रोसेस में कोई चीज अगर आपकी
सही में पैशन होगा, कोई चीज आपकी सही में पैशन है, तो उस काम को करने में यू विल एंजॉय, आप उसको काम को करने में अच्छे होंगे, आप उससे प्यार करेंगे, एंजॉय करेंगे। जितना ज्यादा आप उस काम को करेंगे, आपकी उस काम को करने की इच्छा और तीव्र होगी। यानी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। पैशन में वो काम नहीं करता, मतलब आप और ज्यादा ग्रो करने लगते हैं अपने पैशन में। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो। Right, so thank you so much for that. I think I was looking at the chat section also, and a lot of people said that वो जो सवाल था, like between wanting to find your passion and finding your passion, how to, navigate the waters. I think a lot of people said that the same question, and now, of course, you can also see the chat. जी I think a lot of young people have received a little bit more clarity today. जी But sir, my next question to you was coming to, NLP and your practicing of it. Where did it all start? Like, how did you get introduced to it? How have you developed it and, created your own methods with it? Because a lot of people also have a critique of NLP, where जी it's not like, a very popular method also. But then I think you have taken it and made it something that has become so useful for so many people. So what has been your यस journey with NLP? Your work in the field, and what are you doing with it? And if you could explain it also to our audience today. या श्योर। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि एन का मतलब है न्यूरो, यानी कि डील्स विथ योर न्यूरोलॉजी, कि हम लोग कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके मेंटल मॉडल्स क्रिएट करते हैं, परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, और फिर ये परसेप्शंस हमें लाइफ डिसीजंस को, हमारी चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज न्यूरोलॉजी पार्ट। एल का मीन्स लिंग्विस्टिक्स, यानी कि हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम जो बातें करते हैं, ये बातों में, इन कम्युनिकेशन के जरिए हम बहुत सारा इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंस है, ये हमारी फिजियोलॉजी से आता है, हमारी टोनैलिटी से आता है, जो वोकेबलरी हम यूज करते हैं उससे आता है। तो लिंग्विस्टिक्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज मॉडल्स दैट वी यूज एंड हाउ लैंग्वेज कैन चेंज अस, हाउ लैंग्वेज कैन इन्फ्लुएंस पीपल। लिंग्विस्टिक्स डील विद दैट। एंड देन प्रोग्रामिंग इज मेंटल प्रोग्राम्स, कि कई बार हम एक ही काम को रिपीटेटिवली करते हैं तो वो पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार आप जिस तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, करियर डिसीजन लेते हैं, बिजनेस डिसीजन लेते हैं, ये एक पैटर्न में हम पड़ जाते हैं, फिर उसी पैटर्न से हम सारे डिसीजन लेने लगते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक तरीके का बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है, जो प्रैक्टिकल टूल हमें मदद करता है दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग्स ऑफ अवर ब्रेन, how we can understand our thoughts, emotions and feeling, and how we can change them, regulate them, how we can overcome overthinking, how we can overcome our worry patterns, negativity, self-doubt, how we can create patterns of confidence and self-love। तो ये सब चीजों के लिए एनएलपी काम में आती है। तो एनएलपी बेसिकली थेरेपी में भी यूज होती है, पर्सनल डेवलपमेंट में भी यूज होती है, बिजनेस और लीडरशिप में भी यूज होती है। तो जो कई बार एनएलपी को कुछ क्रिटिक्स इसे सूडो साइंस कहते हैं, राइट। तो जब वो ये कह रहे हैं तो दे आर नॉट बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पर्सनल डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ एनएलपी और द बिजनेस एंड लीडरशिप एस्पेक्ट ऑफ एनएलपी। वो तो बिल्कुल, मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइंस, राइट। हर चीज साइंस का हिस्सा नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट साइंस और सोडो साइंस। फॉर एग्जाम्पल, हम गोल्स बनाते हैं तो वी यूज स्मार्ट, स्मार्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, अचीवेबल होना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यू कैन नॉट अप्लाई साइंस टू दिस कॉन्सेप्ट, बट इफ वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, people get benefits, right? So self development is such a process where you cannot put the scientific method, आप scientific method इस पे नहीं लगा सकते। For example, स्टीफन कवी ने सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक मैट्रिक्स दी है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स दी है कि ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क हैं, ये अर्जेंट और नॉन इंपॉर्टेंट टास्क हैं, नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क हैं। अब आप जब इस मॉडल को अप्लाई करते हैं तो इट इज वेरी यूजफुल टू बी प्रोडक्टिव, या फिर हम जर्नलिंग करते हैं तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर अवर प्रोडक्टिविटी, बट दे आर नॉट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। बिकॉज साइंस क्या है, साइंस का मतलब ये होता है कि साइंस इज बेसिकली अ वे ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस है ये एक, जिसका स्टेप्स क्या है कि फर्स्ट यू ऑब्जर्व अ फिनोमेना, आप एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक पत्थर पानी में फेंका और वो डूब गया, यू ऑब्जर्व द फिनोमेना, ठीक है। नाउ यू डेवलप अ हाइपोथेसिस, कि आप अपना हाइपोथेसिस देते हैं कि ये क्यों डूबा, ठीक है। यू गिव अ थियरी कि ये हैवी है इसलिए गिर गया, या फिर भारी चीजें जो होंगी जिनका वजन ज्यादा है वो चीजें पानी में डूबेंगी, ऐसा एक हाइपोथेसिस आपने बना दिया। नाउ यू हैव टू क्रिएट एन एक्सपेरिमेंट, अब आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है टू प्रूव योर हाइपोथेसिस,
नाउ एक्सपेरिमेंट आपको क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट आपको ऑब्जर्वेशंस देगा, इन्फ्रेंसेस देगा, डेटा देगा। अब उस डेटा को आपको मैच करना है अपनी थ्योरी से, वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर फिट बैठता है, ऑब्जर्वेशन अगर राइट है, तो आपको पीयर रिव्यू में भेजना है उसको, यानी कि आप ही की साइंटिफिक कम्युनिटी के अलग अलग लोगों के पास में भेजना है। दे विल टेस्ट इट, एंड अगर सब मैक्सिमम इससे अग्री करते हैं, छोटे मोटे क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, but if maximum community agrees to it, we will consider that this is a proven thing and this is a scientifically proven thing, right? This is basically a process. Now SWOT analysis हो गया, belief changing patterns हो गए, you cannot design experimental, you cannot put them in laboratory because every human being is different, right? So आप लेबोरेटरी में लगा के इसको टेस्ट नहीं कर सकते, राइट? सो जहां पे क्रिटिसिज्म है एनएलपी को, जो थेरेपी में इसका यूज है, स्पेशली थेरेपी में भी जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर, क्लिनिकल डिप्रेशन, या इन जगहों पे जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वहां पे इसको क्रिटिसिज्म रहता है। बाकी एरिया में तो कोई क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन ही कहीं पे नहीं है। तो डेफिनेटली उन एरियाज में क्रिटिसिज्म है, ओके, बट मैं ज्यादा फोकस क्रिटिक्स पे करने के बजाय मैं ये देखता हूँ कि मैंने अपने 19 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था। 19 साल की उम्र में मैं आई स्टार्टेड टेकिंग लेक्चर्स इन स्कूल्स, मेमोरी पावर और इन सब पे। टुडे आई एम 36, ऑलमोस्ट 17 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। और वेलनेस के अंदर मैं बात करूं तो पिछले 7 साल से मैं सिर्फ वेलनेस में हूँ। तो इस जर्नी में इतने सारे लोग डिप्रेशन से बाहर आए, इतने सारे लोग हुए जो सुसाइडल टेंडेंसीज में थे, लेकिन हमारी मदद की वजह से हम एक जरिया बन पाए उनको हेल्प करने का। तो मेरे लिए असली विज्ञान वही है जहाँ पे कुछ जाने बच सकें, कुछ लोग पॉजिटिव हो सकें, कुछ लोग अपने गोल तक पहुंच सकें। तो भले ही मेरे पास में कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट उसके लिए हो चाहे नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, बट इफ पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड दैट मैटर्स अ लॉट टू मी। और आई डोंट हैव एनी हेट्रेड फॉर क्रिटिक्स एज वेल, क्रिटिक्स के प्रति भी मुझे हेट्रेड की भावना कभी भी नहीं है, बिकॉज हर चीज का क्रिटिक तो रहेगा। मतलब आप कोई भी चीज, ह्यूमन माइंड पोलराइजेशन पे काम करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एक चीज ऐसी है जिसके प्रति सबके सब पॉजिटिव है। ऐसे भी लोग हैं जो साइंस को लेके भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है? सो उसको भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो लोग तो सचिन तेंदुलकर को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, धोनी को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, महात्मा गांधी को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो आप जितना बड़ा काम करेंगे उतना आपको क्रिटिसिज्म मिलने लगेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रिटिसिज्म से परे रह सकें, ठीक है? वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सूडो साइंस बोला जाता है, मैनिफेस्टेशंस को बोला जाता है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं तो होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, सभी को सूडो साइंस बोला जाता है। तो ये वर्ड मेरे ख्याल से साइंस या सूडो साइंस वर्ड ही यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट साइंस। लाइफ में आर्ट भी है, फिलोसफी भी है, म्यूजिक भी है, पोइट्री भी है, राइट? अब पोइट्री में लिख रहा हूँ तो पोइट्री को क्या मैं लेबोरेटरी के अंदर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में डालूंगा, राइट? सो इट्स लाइक दैट ओनली। Correct, sir. So, like thank you for explaining NLP in such a detailed form and such a simple form that I think everyone's actually understood what it really is today. And like I said in the start, irrespective of what anyone says, you took a concept and you have impacted so many lives positively with it. And I think that is why you are who you are, and you've been able to create the kind of impact that you've created with people by, like you said, not only saving lives, but also helping rebuild and recreate after that and being a part of people's lives in that long term process. Speaking of helping people in the long-term process, I think this will be something that they will remember for a very long time. We have two students from the Rishihood University who joined us, and they had a जी, few questions they wanted to ask you, if you'll allow us. So first, I'd just like to invite Anmol, if you can ask sir your question. यस अनमोल। So, good evening, sir. My name is Anmol Kaur. I'm from Rishihood University, which is the first impact university which promotes culture and traditional perspectives of life. So, sir, my question is to you that what are some common signs and symptoms of excessive social media use that may indicate the need of intervention and support in maintaining a healthy balance? Very good. A youngster asking about social media, that's a good question. So कई स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप एक दिन में पहली चीज, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, ओवरऑल डिजिटल यूसेज या कैमरा यूसेज, फोन यूसेज, राइट नाउ इंडिया का जो एवरेज स्क्रीन टाइम है वो है 2 घंटा और 22 मिनट। 2 hours 22 minutes is the average screen time in India. Okay, so first is we have to reduce screen time.
30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक का, इफ यू आर ए स्टूडेंट, इससे ज्यादा का आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। सेकंड, 9 से ज्यादा सेल्फी आपके फोन में एक दिन में नहीं होनी चाहिए। इसे सेल्फी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, कि अगर एक इंसान 9 से ज्यादा सेल्फी, कुछ ऐसे पेपर्स हुए जिसमें कुछ साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि 9 से ज्यादा अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो इसका मतलब ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो 9 से ज्यादा सेल्फी नहीं लेनी है अपने फोन में। थर्ड चीज, जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो नेवर कंपेयर योर लाइफ विद अदर पीपल। ओके, सोशल मीडिया पे आजकल क्या है, बच्चे दूसरों की लाइफ को देख करके, दूसरों की इंस्टाग्राम फेसबुक देख करके, उनकी अच्छी खेलती कूदती हुई और शानदार जिंदगी, फिल्टर से भरपूर जिंदगी देख करके ऐसा लगता है कि ये लोग इतने खुश हैं और मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ, या फिर इनका इतना फॉलोअर है, इनका इतना लाइक है, मेरा इतना फॉलोअर, मेरा इतना लाइक क्यों है। तो वो कभी भी ना करें, ठीक है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जाना है कि कोई भी इतना खुश नहीं है जितना वो अपने सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, और ना इतना खूबसूरत है जितना वो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है। तो सोशल कंपैरिजन में ना पड़े, अपनी जर्नी को खुद तय करें। और कोई भी टूल हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो अखबार थे एक टाइम पे, कोई भी टूल जब तक आप उसे यूज कर रहे हो तब तक वो यूजफुल है। जिस दिन सोशल मीडिया आपको यूज करने लग जाएगा उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। जब तक आप मोबाइल को कॉन्शियसली यूज कर रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन जिस दिन मोबाइल आपको यूज करने लग गया, यानी कि अब आपकी कॉन्शियस चॉइस नहीं रही, अब आप कंपल्सिव हो चुके हैं, उस दिन ब्रेक ले लेना चाहिए। कि जब ऐसा लग जाए कि मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला इंसान कंट्रोल कर रहा है, उस टाइम पे हमें क्या करने का, कि दूरी बना लेने की। ठीक है। Thank you so much, sir. I think it's very important that even here we regulate and we sort of just reflect on how much we're using our social media. And like you said, as long as we are the ones using it, I think everything will be fine. Thank you so much, Anmol, for asking the question. I think we have the second one, Ranjit Kaur, who's also with us here today. So why don't you ask your question to sir also? Hi sir, good evening. I am here in Rishud University to participate in a national level event, that is Unhackathon, that is basically based on the mental health issues. To unhack ourselves from the social media, to take control and our body and mind. So my question is related that what are some practical tips that you can give us to incorporate into our daily life routine to reduce screen time and prioritize real life interaction and thus making a healthier relationship with technology? Thank you, sir. सबसे पहली चीज तो ये कि हमेशा एक स्केड्यूल रखें कि अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज इट कॉन्शियसली, नॉट कंपल्सिवली। विदाउट इंटेंट डोंट ओपन योर फोन। फॉर एग्जांपल, आजकल क्या है, लोग कि इंस्टाग्राम खोला और रील को बस स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और unconsciously automatically scrolling चल रही है। It should not happen. If you open your phone, suppose if you are using technology, whether it is ChatGPT or it is Google or anything, you should know why you have opened and what is the outcome. कि अगर ये 20 मिनट्स में सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ तो मेरा आउटकम क्या है, वो आउटकम की क्लैरिटी के बिना उसको ओपन ना करें। तो कई बार क्या होता है, आउटकम हमें क्लियर नहीं है, आउटकम कुछ नहीं है, सिर्फ क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कि आसपास के लोगों में क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, वो ताका झाकी करने के लिए लोग जाते हैं या फिर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली पावरफुल टूल जो हमारी लाइफ को बहुत बेटर कर सकता है, एम्पावर कर सकता है, एनहेंस कर सकता है। लेकिन कॉन्शियसली करोगे तभी एनहेंस होगी, अनकॉन्शियसली नहीं करना है, ऑटोमेटिक इसको नहीं होने देना है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑलवेज फिक्स अप ए शेड्यूल कि ये पर्टिकुलर टाइम पे आई यूज सोशल मीडिया एंड दिस इज द आउटकम, व्हाई आई एम गोइंग लाइव, व्हाई आई एम गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, व्हाई आई एम गोइंग ऑन फेसबुक, व्हाट इज द आउटकम आई एम लुकिंग फॉर। वो आउटकम की क्लैरिटी जरूर ले लें और उसके बाद में अपनी टेक्नोलॉजी को आप यूज करें और बाकी स्केड्यूलिंग करें। सेकेंड चीज, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, बाय चांस ज्यादा हो गया है, तो हमेशा लॉग आउट कर लें। जब भी इंस्टाग्राम देखा उसको लॉग आउट करके बाहर निकले, तो अब जब भी वापस देखना है यू हैव टू लॉग इन अगेन। जब भी कहीं पे आपको लॉग इन बार बार करना पड़ता है ना, देयर इज पेन एसोसिएटेड विद इट, उसके साथ में एक पेन एसोसिएटेड है एंड आपका ब्रेन पेन प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। जिस भी चीज में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा वो उससे आपको दूर भगाने का प्रयास करेगा। तो जितनी बार
लॉग इन करना पड़ेगा, आपके अंदर पेन आएगा, तो अब दिमाग क्या कहेगा, यार अभी तो देखा था, अभी वापस देखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको naturally you will use the default design of your brain to discipline your mind. Right, sir. Thank you so much. I think those are actual everyday practices we can use. I think Yes. logging out, I will also try now, and I think it's much needed. So I think that is something all three of us will try, and all the viewers. I think the 1,000+ viewers here, even they will be practicing. I think Anmol had one more question for you, so we can do that before we go to our last segment. Yeah, sure. Yes, sir. So my next question is, sir, many students today experience FOMO, fear of missing out, and comparison anxiety due to social media. So how can we build self-esteem to cope with this pressure and maintain a positive self-image in digital age? देखिए, मेरी एक फ्रेंड है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी टर्म कही है। फोमो की जगह हमारा एक टर्म है जोमो, प्रैक्टिस जोमो। जोमो पता क्या है? जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, तो आप फोमो वाली पार्ट में ना जाएं, आप कहाँ चले जाएं? जोमो वाले पार्ट में चले जाएं। और जोमो क्या है? जॉय ऑफ मिसिंग आउट। Learn this behavior. There is a joy in missing out as well. It's not necessary what other people are doing, you also have to do. इसलिए मैंने कहा कि it is important to have very clear understanding of your core values. अपनी core values की जब clear understanding होती है आपको, तो आपको exactly पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस में आपको joy मिलेगी और किस में आपको नहीं मिलेगी। और हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो इंस्पिरेशन है वो फियर में बेस्ड नहीं होना चाहिए। योर इंस्पिरेशन शुड बी बेस्ड इन लव, इट शुड बी बेस्ड इन जॉय, इट शुड बी बेस्ड इन लव, नॉट इन फियर। ओके, I think that's one of the most beautiful things I've heard, that your inspiration should be based in joy and not in fear, and connecting that to the OMO after that. So I think that's a lesson all of us should take away, that one sentence, to base inspiration in joy and not in fear. Which brings me to one question that I wanted to ask you. If there are 3 things that you would ask all of the young people, school students, college students watching this live, who are just maybe going to step out into the world outside of education, to practice every day to help them unleash their potential, whatever that potential be, whatever that goal be, what are 3 things they should do every day to help them unleash that full potential? see, first thing, always practice self-care. Self-care should be a daily part of your routine. It means डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको देना है खुद के साथ में। नो मैटर आप कितने व्यस्त हो, नो मैटर आपको दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नाउ वेदर यू टॉक टू योरसेल्फ, वेदर यू मेडिटेट, जो भी आप करें, लेकिन ये आपको डेली बेसिस पे करना है। सेकंड चीज, ट्रेन योर माइंड फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कई बार आजकल हम इतना फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब इमीडिएटली चाहिए सब कुछ। मतलब 2 मिनट में मैगी चाहिए, 20 मिनट में पिज्जा चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकेट चाहिए, 2020 का क्रिकेट मैच चाहिए और 30 सेकंड की रील चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम से पूछो ना व्हाट इज द आइडियल टाइम, तो कहता है 30 सेकंड में नहीं, 15 सेकंड का ही बनाओ। ठीक है, कि 15 सेकंड का रील आइडियल है आपका रील। ठीक है, तो ये क्लियरली बता रहा है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो आजकल हमारे साथ में है। तो ऑलवेज प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सो सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो, यानी खुद के साथ समय बिताओ। सेकंड, डिले ग्रेटिफिकेशन लेकर के आओ अपनी लाइफ में। हमेशा चीज, जैसे कि अगर कोई बहुत ही फेवरेट आपका फूड है जो इमीडिएट खाने की इच्छा हो रही है, इवन बेसिक चीजों में डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वेट फॉर 5 मिनट। मतलब जब आपकी इम्पल्स पीक पे है, डोंट डू इट एट दैट टाइम, वेट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट 5 मिनट, लेट द इम्पल्स डिले एंड देन टेक द एक्शन। ओके, सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है वो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसको हमें अप्लाई करना चाहिए। और थर्ड चीज, मटेरियलिस्टिक गोल्स के पीछे भागने के बजाय अपने आप से जुड़ें और जो आपको फुलफिलमेंट देंगी चीजें, जैसे कि मीनिंगफुल काम करें जो आपके लिए मीनिंगफुल है, जिससे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप फुलफिल रहेंगे, जिससे आप खुश रहेंगे, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे।
ऐसी बातों से ज्यादा प्रभावित हो, इसके बजाय कि गाड़ियों से, बंगलों से, इन सब चीजों से प्रभावित होने के बजाय। ये भी जरूरी है, ठीक है, मैं खुद भी शौक रखता हूँ, मगर कभी भी ये चीजें मुझे ड्राइव नहीं करती हैं। मुझे जो मेरा फोर्स मिलता है वो मेरे पर्पस से, मिशन से, विजन से, वैल्यू से, इम्पैक्ट से, इन सब चीजों से वैल्यू लेना शुरू करें। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये 3 चीजें अगर आप रेगुलरली अपने माइंडसेट में लाएंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आप बहुत खुशहाल जीवन अपने लिए क्रिएट करेंगे। Thank you so much, sir. I think those 3 lessons, I think all of us should practice. And a lot of students in the chat section and other people from the field have also been agreeing with what you've said. So I'm sure a lot of people will start practicing these 3 things today. And before we end any conversation that I am on, regardless whether it's on Instagram or anywhere, we play a small game which is called our rapid fire, where I'll just read out a few words, and आपके दिमाग में जो भी the first thing that comes, you should share with us. Okay, very simple. It is not too many, just 4-5 words. The first thing is the mental health. Make it a priority. Priority. Dreams and goals. Take inspiration from them, but don't be controlled by them. Destiny and hard work. Combination of both. Combination of both. Emotional well-being. Again, make it a priority. Learn to regulate your emotion. It is a learnable skill. It is not something you naturally have. Okay. The last one is India. Love, patriotism, mother. I agree. Sometimes there's not enough words to describe. And the last one, but not the least, our organization, which is IIMUN. I think it's a very great initiative that has been taken. I think people like Shashi Tharoor, A.R. Rahman, and Mr. Godrej और इतने एडवाइजरी आपके मेंटरशिप में हैं, इतने बढ़िया माइंड्स, इतना बढ़िया कॉज आप लेकर के काम कर रहे हैं। सो बहुत बढ़िया है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसे कॉन्वर्सेशन होने चाहिए, अवेयरनेस लोगों के अंदर जानी चाहिए। सो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव and I'm very happy that you guys are making such a big impact. I was just reading that more than 220 cities, more than 35 countries, 5 crore से ज़्यादा लोगों को आप teach कर पा रहे हैं, तो it is amazing initiative. Thank you so much, sir. And also our founder, Mr. Rishabh Shah, had joined the live. I think he had left a comment for you earlier on. Okay. So even he was there during the session with you, with us here today. And thank you so much for joining us in today's live interaction at the Classroom to Career series with Rishabh University. I think we have taken away a lot, but for me it will always, I think that one sentence will remain in my head now, which is to find inspiration and joy and not the fear. And it is okay to miss out as long as we are focusing on the joy and not the fear of missing out. So thank you so much. I think that one sentence is, that one thing is ringing in my head, but there's a lot of other things you have taken away, including things like practicing gratitude every day, to prioritize our mental health and emotional well-being, and to learn how to take care of ourselves, be nicer to ourselves. I think in a very short span of time, you've given us so many lessons, and you've also simplified them and made them so easy that we can use them every day. So thank you so much for coming and being a part of this interaction with us. It's been wonderful to host you. We have learned a lot, and we're always it's always so nice to have you with us. Thank you so much for joining. God bless you. It's been such a pleasure.